નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે વિકાસ મકવાણા. સમાચારની શરૂઆત કરીએ. વિપક્ષના હોબાળા વચ્ચે આજે લોકસભામાં વકફ બિલ રજૂ થઈ રહ્યું છે. કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજિજુએ લોકસભામાં આ બિલ રજૂ કર્યું અને હવે તેના પર ચર્ચા થઈ રહી છે. સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરણ રિજિજુએ કહ્યું કે સમાજના દરેક વર્ગના અભિપ્રાય લેવામાં આવ્યા છે. અમારી કમિટી કોંગ્રેસ જેવી હોતી નથી તેવું પણ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ તરફથી કહેવાયું હતું. તેમણે કહ્યું, કોંગ્રેસના રાજમાં કમિટી માત્ર થપ્પા મારતી હતી. કેબિનેટમાંથી પાસ થઈને આ બિલ આવ્યું છે. સંસદ ભવન પર પણ વકફ દાવો કરતું હતું તેવું કિરણ રિજિજુએ આજે કહ્યું. વકફ બિલ પર વિપક્ષનું મન સાફ નથી તેવું પણ રિજિજુએ કહ્યું હતું. सामने रखा आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था. कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया. वो जो मत प्रकट हुआ वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया. कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए. ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है. मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने. अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है. कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी. हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है. अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? Hindus from Sri Lanka. All these Sri Lankan refugees, sir, are Hindus. Why they were not added in CAA is not known. When he moved an amendment, unfortunately, certain vested interest not supported that amendment, so it was defeated. Now, Sri Lankan Tamils are Hindus. While you are recognizing the Hindus from other countries and give citizenship, why you are excluding Hindus from Sri Lanka? Because they are Tamils, because they are Dravidians, because they are untouchables. Now, they have to be addressed. This issue is to be necessarily addressed by the government. Sir, while speaking in Lok Sabha, the Honorable Home Minister said, DMK MPs, when they met me, they have not raised this issue. Sir, I have to say this. From 2009, the members of parliament of DMK are raising this issue on every available platform. The union government is not listening to us. From 2014, a partisan attitude is being shown to us. Now, let me, for the purpose of argument, take that we have not raised this issue with you. Is it not the government's duty to look into the troubles of persons who are coming here, who are seeking asylum, who are refugees here, and to address their concerns? So I want to quote Thiruvalluvar for 1 minute. நாடோறும் நாடிமுறை செய்யா மன்னவன் நாடோறும் நாடு கெடும், which if translated to English, it says the country of the king who is not examining every day into the wrongs done will ruin every day. This government have to see what are all the wrongs done by them every day and have to address this. Also, the Home Minister said, Vasudeva Kudumbakam, while speaking on this bill. We Tamils very proudly claim Yadumure Yavarim Keli. There is no difference between these two concepts. We say, sir, you want to reply me? Are you yielding? All right. உங்களுடைய அக்கறைக்கு நன்றி.
Sir, so I Member, request please the मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार सदन को विस्तार से बताएं, जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग भी देश घूमते हैं, तो मैनेजर साहब की बिल्डर से साठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? वक्फ इसके लिए नहीं होता है, इसलिए ये पूरा बदलाव सर जरूरी है। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस कानून के संदर्भ में, लेकिन उसके पहले सर हम एक बिहार के बड़े वरिष्ठ नेता को भी कोट करना चाहेंगे। और सर आपसे मैं आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बड़ी विद्वता भरी टिप्पणी थी सर, वो सदन के सामने आनी चाहिए सर, वो बहुत जरूरी है। वो उस समय सर पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर वो नेता जो थे, जो उन्होंने ये बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, मैं लेकर दूंगा सर। किसने नहीं विरोध किया? और आज मैं विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ तो दिल में झांकिए आप सर। आई विल टेक 5 मिनट्स, आई विल कंक्लूड। कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो, हम खामोश रहें? इसको सख्त करना बहुत जरूरी है सर। एक बात उन्होंने बार बार कही कि पहले हाईकोर्ट को भी पावर था। हाईकोर्ट डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट पावर। हाईकोर्ट चाहे तो कॉल फॉर कर सकता है या कोई कंप्लेन कर सकता है। लॉ में कोर्ट जाना मना था, और ट्राइब्यूनल ने कैसे कैसे काम किया ये भी आप जानते हैं। तो आज यहां पर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। और मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा, मैं 2-3 ट्राइब्यूनल की कहानी जानता हूं, कृपया करके ट्राइब्यूनल ठीक ठाक चले, सिर्फ सेटिंग गेटिंग नहीं हो। ये भी बहुत जरूरी है कि ट्राइब्यूनल में ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। सर मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि जो बार बार आज कह रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, मैं चाहूंगा कांग्रेस के भी जवाब दे इसको। आज क्रिश्चियन समाज क्यों दुखित है? वो चाहते हैं वक्फ में बदलाव हो। पूरे भारत के क्रिश्चियन समाज, केरला के क्रिश्चियन समाज, द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द चर्चेज आर वेरी वेरी डिस्टर्ब बाय द इंक्रोचमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी अंडर द गार्ब ऑफ वक्फ। तो उनको लगता है बदलाव जरूरी है। अखिलेश जी, आपको भी कभी सोचना ही पड़ेगा, कभी आपको भी सोचना ही पड़ेगा। हा? जिस तरह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से क्रिश्चियंस हैं आपके लखनऊ के आसपास, मालूम है ना आपको? अच्छा चलिए सर, 2-3 बिंदु बस देके अपनी मैं बात समाप्त करूंगा सर। नंबर 1, आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं? इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे, या गरीबों के लिए काम में आए, पसमंदा मुसलमानों के लिए काम में आए, बेटियों के लिए काम में आए? ये उसके लिए रास्ता खोल